बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज के सेशन में हमारा मौजू है जुज़ नंबर 1 तफ़हीम का ज़ैली जुज़ मुकालमा। इस सेशन में हम मुकालमे और उन पर मबनी सवालात की मश्क करेंगे। मुकालमा किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। तो गुफ्तगू दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान हो सकती है। तो जब बातचीत दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान हो उसे मुकालमा कहते हैं। दो या दो से ज्यादा अफराद एक दूसरे से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसे हम मुकालमा कहते हैं। तो दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। इम्तिहान के पर्चे में इक़्तिबास और नज़्म ही की तरह एक मुख्तसर मुकालमा दिया जाता है। उसके नीचे सवालात होते हैं। हर सवाल के नीचे मुतबादिल जवाबात दिए जाते हैं। आपको सही जवाब के नंबर पर साया करना होता है। मुकालमे और उन पर मबनी सवालात के सही जवाबात देने के लिए चंद बातों को ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। वो बातें कौन सी हैं? सबसे पहले मुकालमा तवज्जो के साथ पढ़ें। मुकालमा पढ़ते वक्त बयान वाक़े पर तवज्जो दें। इसके लिए आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी बात, मुकालमा कब, कहाँ, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ, ऐसा किसने कहा, उसने क्या जवाब दिया वगैरह, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सवालात पूछे जाते हैं। लिहाजा तलबा भी इन निकात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। ये तो आप जानते ही हैं कि दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। तो मुकालमा कहाँ, कब, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ,
ایسا کس نے کہا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات پوچھے جاتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان نکات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ تیسری اہم بات، قوت فکر بروئے کار لاتے ہوئے صحیح جواب تک پہنچیے۔ مشق کے وقت ہم دیکھیں گے کہ چند سوالات ایسے بھی پوچھے جاتے ہیں جن کے سیدھے جوابات مکالمے میں موجود نہیں ہیں۔ اس کے لیے آپ کو غور و فکر کرنا ہے، اپنی سابقہ معلومات کا استعمال کرنا ہے۔ تو قوت فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے صحیح جواب تک پہنچیے۔ اور آخر میں مکالمے کے تحت کم از کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا اقتباس اور نظم میں 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح مکالمے کے تحت کم از کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سیشن، تفہیم یعنی پڑھ کر خیال اور تصور کو سمجھنا۔ آج ہم مشق کریں گے مکالمے اور ان پر مبنی سوالات کی۔ تفہیم، پڑھ کر خیال اور تصور کو سمجھنا۔ مکالمہ نمبر 3۔ مکالمے سے پہلے ہدایت لکھی ہوتی ہے، اسے ہمیں بغور پڑھنا ہے۔ درج ذیل مکالمے پڑھیے اور ان کے نیچے دیے گئے سوالوں کے جوابات تلاش کر کے صحیح جواب کے متبادل نمبر والے دائرے میں رنگ بھر دیجیے۔ تو یہ ہدایت ہے، جو مکالمہ دیا ہوا ہے اسے بغور پڑھنا ہے اور اس کے نیچے دیے گئے سوالوں کے جوابات تلاش کر کے صحیح جواب کے متبادل نمبر والے دائرے میں رنگ بھرنا ہے۔ مکالمہ پڑھتے ہیں۔ یوسف، میں نے تمہیں اپنی پرانی گھڑی مرمت کے لیے دی تھی، اس کے ساتھ تم نے ایک نئی گھڑی کیوں بھیج دی؟ ماسٹر صاحب، میں جب پڑھتا تھا اس وقت سے یہ گھڑی آپ کے ہاتھ پر دیکھ رہا ہوں۔ سچ کہہ دوں تو اب وہ گھڑی مرمت کے قابل ہی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس نئی گھڑی کی قیمت تو ادا کر دوں۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ جناب، شرمندہ مت کیجیے، ایک شاگرد کا تحفہ ہی سمجھ کر رکھ لیجیے۔ اوہ، شکریہ شکریہ۔ نہیں جناب، مجھے تو خوشی ہوئی کہ آپ نے اس ناچیز کا تحفہ قبول کیا۔ مکالمہ ہم نے پڑھا، آپ نے غور کیا مکالمہ کس کے درمیان، کس موضوع پر ہوا، کس نے کیا کہا اور کیا جواب دیا۔ تو مکالمہ 2 افراد کے درمیان ہوا، یوسف اور ماسٹر صاحب۔ کس موضوع پر یہ مکالمہ ہوا؟ گھڑی کے موضوع پر۔ ماسٹر صاحب نے یوسف کو ایک گھڑی مرمت کے لیے دی تھی، یوسف نے وہ گھڑی لوٹا دی کیونکہ اب وہ گھڑی مرمت کے قابل ہی نہیں رہی، مگر ساتھ ہی ساتھ یوسف نے ایک نئی گھڑی بھی بھیجی تھی۔ ماسٹر صاحب اس کی قیمت ادا کرنا چاہتے تھے۔ یوسف نے کیا کہا؟ ایک شاگرد کا تحفہ ہی سمجھ کر رکھ لیجئے۔ اس پر ماسٹر صاحب نے یوسف کا شکریہ ادا کیا۔ اس بات پر یوسف کو بڑی خوشی ہوئی کہ ماسٹر صاحب نے اس کا تحفہ
कबूल किया। अब इस मुकालमे पर मबनी सवालात देखते हैं और उनके जवाबात देने की कोशिश करते हैं। मुकालमा कितने अफराद के दरमियान हुआ है? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 1, नंबर 2 2, नंबर 3 3 या नंबर 4 4। तो मुकालमा 2 अफराद के दरमियान हुआ, मास्टर साहब और यूसुफ के दरमियान। तो मुकालमा कितने अफराद के दरमियान हुआ है? मुतबादिल नंबर 2 2 अफराद के दरमियान। तो सही जवाब है 2। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। यहाँ एक बात काबिले गौर है, वो सवालात जिनके जवाबात अदद में हों। मसलन इस सवाल में मुकालमा कितने अफराद के दरमियान हुआ है, तो जवाब अदद में है 2, और ये जवाब मुतबादिल नंबर 2 पर मौजूद है। लिहाजा हमने क्या किया? 2 नंबर के दायरे पर साया किया। मगर फर्ज कीजिए अगर ऑप्शंस कुछ इस तरह होते, मुतबादिल नंबर 1 1, मुतबादिल नंबर 2 3, मुतबादिल नंबर 3 2 और मुतबादिल नंबर 4 4, तो उस वक्त सही जवाब मुतबादिल नंबर 3 के आगे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत में आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना। मुकालमा 2 अफराद के दरमियान हुआ है, तो आप जल्दबाजी में नंबर 2 पर साया बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जवाब का जो अदद है 2, वो दरअसल लिखा हुआ है मुतबादिल नंबर 3 पर। तो हम क्या करेंगे? मुतबादिल नंबर 3 पर साया करेंगे, क्योंकि हमारा जवाब मुतबादिल नंबर 3 है। 3 नंबर पर हमारे जवाब का अदद लिखा हुआ है। तो यहाँ आदाद की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप बिल्कुल जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे, और हर मजमून में आपको इस बात का ख्याल रखना है। खास तौर पर जब आदाद 1 2 3 या 4 हों, तो उस वक्त हो सकता है आप जल्दबाजी में मुतबादिल नंबर गलत चुने, हालांकि आप जानते हैं सही जवाब क्या है और आप सही जवाब पर दायरा बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ जल्दबाजी की वजह से एक सिली मिस्टेक हो सकती है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें, जिस तरह इस सवाल के जवाब में। तो यहाँ इत्तेफाक से हमारा जवाब 2 जो है वो मुतबादिल नंबर 2 पर लिखा हुआ है, इसलिए आपने 2 नंबर पर दायरा किया। मगर अगर 2 मुतबादिल नंबर 3 होता तो उस वक्त हम क्या करते? उस वक्त हम 2 नंबर पर साया नहीं करते, हमें मुतबादिल नंबर के दायरे पर साया करना है। तो यहाँ 2 अदद जो है वो मुतबादिल नंबर 3 पर लिखा है, इसलिए हम अगर ऐसा होता तो 3 नंबर के दायरे पर साया करते। तो उम्मीद है आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे। अगला सवाल, घड़ी की मरम्मत कौन करता है? ऑप्शंस हैं, नंबर 1 मास्टर साहब, नंबर 2 यूसुफ, नंबर 3 यूसुफ का भाई,
या नंबर 4 यूसुफ के वालिद। हमने देखा बिल्कुल शुरुआत में ही मास्टर साहब यूसुफ से कह रहे हैं, मैंने तुम्हें अपनी पुरानी घड़ी मरम्मत के लिए दी थी, उसके साथ तुमने एक नई घड़ी क्यों भेज दी? तो घड़ी की मरम्मत कौन करता है? यूसुफ। घड़ी की मरम्मत कौन करता है? मुतबादिल नंबर 2 यूसुफ सही जवाब है। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। यूसुफ ने मास्टर साहब को नई घड़ी क्यों दी? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 यूसुफ नई घड़ी बेचना चाहता था। नंबर 2 यूसुफ को पैसों की जरूरत थी। नंबर 3 पुरानी घड़ी मरम्मत के काबिल ही नहीं रही। या नंबर 4 यूसुफ के हाथों मास्टर साहब की घड़ी गुम हो गई थी। आप अच्छी तरह जानते हैं यूसुफ ने मास्टर साहब को नई घड़ी क्यों दी। यूसुफ ने मास्टर साहब से कहा, मास्टर साहब मैं जब पढ़ता था उस वक्त से ये घड़ी आपके हाथ पर देख रहा हूं। सच कह दूं तो अब वो घड़ी मरम्मत के काबिल ही नहीं रही। तो यूसुफ ने मास्टर साहब को नई घड़ी क्यों दी? सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 पुरानी घड़ी मरम्मत के काबिल ही नहीं रही। हम क्या करेंगे? जवाबी पर्चे में मुतबादिल नंबर 3 के दायरे पर साया करेंगे। मुकालमा नंबर 4। ज़ोहरा क्या सोच रही हो? भाईजान टीचर ने मजमून लिखकर लाने के लिए कहा, उसी के मुतालिक सोच रही हूं, समझ में नहीं आ रहा। कोई उन्वान दिया उन्होंने? हाँ दिया है ना, मेरा स्कूल में पहला दिन, मेरा पसंदीदा परिंदा, बस स्टैंड पर 1 घंटा। तुम्हें इन उन्वानात में से कौन सा उन्वान ज्यादा पसंद है? सोच रही हूं मेरा पसंदीदा परिंदा पर लिखूं। तुम्हारा पसंदीदा परिंदा तो तोता है। नहीं नहीं भाईजान, वो तो मुझे पसंद जरूर है, लेकिन मोर तो मुझे ज्यादा पसंद है। क्यों? देखो ना कैसा रंग बिरंगी है, बड़े बड़े खूबसूरत पर, सर पर ताजनुमा कलगी, और फिर मौसम बरसात की आमद पर किस तरह पर फैलाकर नाचता है ना? और फिर वो कौमी परिंदा भी है। अरे तो इसमें सोचना क्या, तुम बहुत अच्छा मजमून लिख सकोगी। यही बातें मोर के परों की तरह फैलाकर रंगीन बनाकर लिख दो, हो जाएगा मजमून। भाईजान जुमलों की बंदिश, सही इमले पर एक नजर डाल देना। ठीक है। मुकालमे का बगौर मुताला हमने किया। अहम बातों को आपने जरूर नोट किया होगा। मुकालमा किसके दरमियान हुआ, किस मौजू पर हुआ, किसने क्या कहा और क्या जवाब दिया। तो अब आप बता सकते हैं मुकालमा किसके दरमियान हुआ? ज़ोहरा और भाईजान के दरमियान। किस मौजू पर हुआ ये मुकालमा? मजमून नवेसी के लिए मौजू के इंतखाब पर। सवाल नंबर 1 है, मजमून किसे लिखना है? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 ज़ोहरा को, नंबर 2 भाईजान को, नंबर 3 ज़ोहरा की सहेली को, या नंबर 4 अम्मी जान को। तो मजमून में
भाईजान जोहरा से पूछते हैं क्या सोच रही हो, तो जवाब में जोहरा क्या कहती है, भाईजान टीचर ने मजमून लिख कर लाने के लिए कहा। इसका मतलब मजमून किसे लिखना है, मजमून जोहरा को लिखना है। तो सही जवाब है जोहरा। मजमून किसे लिखना है, मुतबादिल नंबर 1 जोहरा को। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 1 नंबर के दायरे पर साया करेंगे, नीले या काले रंग की स्याही से। पेंसिल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। सवाल नंबर 2, कौमी परिंदा कौन सा है। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 तोता, नंबर 2 कबूतर, नंबर 3 मोर या नंबर 4 कौवा। तो इसका जवाब तो आप जानते ही हैं, आम मालूमात पर मबनी ये सवाल है, मगर इसका जवाब मुकालमे में मौजूद है। यहाँ आप देखें जोहरा भाईजान से कहती है, देखो ना कैसा रंग बिरंगी है, बड़े बड़े खूबसूरत पर, सर पर ताजनुमा कलगी, और फिर मौसम बरसात की आमद पर किस तरह पर फैलाकर नाचता है ना। और फिर वो कौमी परिंदा भी है। सवाल नंबर 2, कौमी परिंदा कौन सा है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 मोर। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। तीसरा सवाल है, सही इमला और जुमलों की बंदिशें दुरुस्त करने में कौन मदद करेगा। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 जोहरा की सहेली, नंबर 2 जोहरा, नंबर 3 अम्मी जान या नंबर 4 भाईजान। तो मुकालमे में आखिर में जोहरा भाईजान से कहती है, भाईजान जुमलों की बंदिश सही इमले पर एक नजर डाल देना। तो इस सवाल का सही जवाब है भाईजान। सवाल नंबर 3 का सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4 भाईजान। सही इमला और जुमलों की बंदिशें दुरुस्त करने में कौन मदद करेगा, भाईजान। जवाबी पर्चे में हम मुतबादिल नंबर 4 पर साया करेंगे। सवाल नंबर 4, जोहरा को कौन सा परिंदा पसंद है। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 मोर, नंबर 2 कबूतर, नंबर 3 तोता या नंबर 4 चिड़िया। अगर आपने मुकालमा गौर से पढ़ा है तो आप जानते हैं जोहरा को कौन सा परिंदा पसंद है। मुकालमे के इस हिस्से में भाईजान जोहरा से कहते हैं, तुम्हारा पसंदीदा परिंदा तो तोता है। उस पर जोहरा कहती है, नहीं नहीं भाईजान, वो तो मुझे पसंद जरूर है, लेकिन मोर तो मुझे ज्यादा पसंद है। तो जोहरा को कौन सा परिंदा पसंद है, इसका सही जवाब है मोर। मुतबादिल नंबर 1, लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 1 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। 5वां सवाल है, कलगी किसके सर पर है। नंबर 1 मुर्गे के, नंबर 2 तोते के, नंबर 3 मैना के या नंबर 4 मोर के। मुकालमे के इस हिस्से में जोहरा बयान कर रही है कि उसे मोर क्यों ज्यादा पसंद है। तो वो कहती है, देखो ना कैसा रंग बिरंगी है, बड़े बड़े खूबसूरत पर, सर पर ताज नुमा कलगी, और फिर मौसम बरसात की आमद पर
किस तरह पर फैलाकर नाचता है ना। तो यहाँ किस परिंदे का जिक्र किया गया है जिसके सर पर ताजनुमा कलगी है? मोर। तो कलगी किसके सर पर है? मोर के सर पर। मुतबादिल नंबर 4 सही जवाब है। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। जुज नंबर 1 तफहीम के ज़ैली जुज मुकालमे और उन पर मबनी सवालात की मश्क हमने की। अब हम चंद अहम बातों का इआदा करेंगे। मुकालमा किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। तो गुफ्तगू 2 या 2 से ज्यादा अफराद के दरमियान हो सकती है। तो जब बातचीत 2 या 2 से ज्यादा अफराद के दरमियान हो उसे मुकालमा कहते हैं। मुकालमे और उन पर मबनी सवालात के सही जवाबात देने के लिए चंद बातों को ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। वो बातें कौन सी हैं? सबसे पहले मुकालमा तवज्जो के साथ पढ़ें। मुकालमा पढ़ते वक्त बयान वाक़े पर तवज्जो दें। इसके लिए आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी बात, मुकालमा कब, कहाँ, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ, ऐसा किसने कहा, उसने क्या जवाब दिया वगैरह, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सवालात पूछे जाते हैं। लिहाजा तलबा भी इन निकात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। ये तो आप जानते ही हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। तो मुकालमा कहाँ, कब, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ, ऐसा किसने कहा, उसने क्या जवाब दिया, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सवालात पूछे जाते हैं। लिहाजा आपको इन निकात को अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है। तीसरी अहम बात, क़ुव्वत फ़िक्र बरोए कार लाते हुए सही जवाब तक पहुंचिए। मश्क के वक्त हम देखेंगे कि चंद सवालात ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनके सीधे जवाबात मुकालमे में मौजूद नहीं हैं। इसके लिए आपको गौर फ़िक्र करना है, अपनी साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल करना है। तो क़ुव्वत फ़िक्र को बरोए कार लाते हुए सही जवाब तक पहुंचिए। और आखिर में मुकालमे के तहत कम अज कम 3 सवालात पूछे जाते हैं। तो हमने देखा इक़्तिबास और नज़्म में 3 सवालात पूछे जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह मुकालमे के तहत कम अज कम 3 सवालात पूछे जाते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।